راولپنڈی تھانہ پیر ودائی کی حدود سے اغوا ہونے والی بچی لاہور سے چند گھنٹوں میں ہی بازیاب، اغوا کار فرار ہونے میں کامیاب۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک شام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی تھانہ پیر ودائی کی حدود سے اغوا ہونے والی بچی لاہور سے چند گھنٹوں میں ہی بازیاب، اغوا کار فرار ہونے میں کامیاب۔ ایس ایچ او تھانہ پیر ودائی ملک کاشف اور ان کی ٹیم کی ڈیجیٹل تفتیش سے چند ہی گھنٹوں میں بچی ٹریس ہو گئی اور تھانہ پیر ودائی کی ٹیم نے لاہور جا کر بچی بازیاب کرا لی۔ لاہور سے اغوا کار مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر پولیس کا کہنا ہے کہ ہم انہیں بھی جلد سے جلد گرفتار کر لیں گے۔ اس موقع پر علاقے کی عوام نے ایس ایچ او تھانہ پیر ودائی ملک کاشف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پولیس کے افسران ہماری ضرورت ہیں جو عوام الناس کی حفاظت کر سکیں۔ کیمرہ مین انجاز کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف آن نیوز۔ شامل کرتے ہیں ٹنڈو جام سے ہمارے نمائندے کیسر خان مری کی رپورٹ کے مطابق سندھ صبا ٹنڈو جام کی جانب سے ٹنڈو جام میں چلنے والی آئس، کچی شراب، انڈین گٹکا، سفینہ اور دیگر منشیات اور جوا اکڑا پرچی کے خلاف میاوکی پارک سے ریلی نکال کر ٹنڈو جام پولیس اسٹیشن کے سامنے حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر دھرنا۔ روڈ کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی۔ خبر کے مطابق سندھ صبا ٹنڈو جام کے چیف آرگنائزر شبیر سندھی، ڈپٹی آرگنائزیشن وقار امیر سندھی کی سربراہی میں بڑھتی ہوئی آئس اور دیگر منشیات جوا اکڑا پرچی کے خلاف پولیس اسٹیشن کے سامنے حیدرآباد میرپور خاص روڈ پر دھرنا دیا گیا۔ ٹنڈو جام ایس ایچ او لیاقت نے مظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو یقین دہانی کروائی کہ جلد از جلد کارروائی کی جائے گی، جس کے بعد حیدرآباد میرپور خاص روڈ سے دھرنا ختم ہوا۔ سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو جام اور ارد گرد کے گاؤں میں منشیات فروشوں اور ان کے سہولت کار منشیات اور جوئے کے اڈے سرعام چلا رہے ہیں، جس میں آئس، ہیروئن، کچی شراب، افیون، چرس، اکڑا پرچی، چھکا کھلے عام ٹنڈو جام میں چل رہا۔ مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو جام پولیس کو نشاندہی کرانے کے باوجود بھی کوئی رد عمل، کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی آئس پینے کے سبب ایک نوجوان فوت ہوا تھا۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم ڈی آئی جی حیدرآباد، ایس ایس پی حیدرآباد سے مطالبہ کرتے ہیں ان منشیات فروشوں اور جوئے کے اڈے چلانے والوں کے مین ڈیلر کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے ہمارے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد بد امنی اور جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ شہریوں نے ڈی سی چوک سے 0 پوائنٹ بائی پاس تک مارچ۔ مظاہرین بائی پاس کے قریب قومی شاہراہ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ سینکڑوں افراد نے دھرنا دے کر سندھ بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ بائی پاس بلاک کر دی۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران جنسی زیادتی کے 3 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مظاہرین ملزمان نے پولیو ورکرز اور ایک خاتون سے زیادتی اور ایک طلبہ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ شہر میں جرائم کی وارداتوں سے عوام غیر محفوظ بن گئی ہے۔ جیکب آباد زیادتی کے ملزمان کو کڑی سزا دی جائے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ انتخابات اندرحل ویلفیئر ٹرسٹ ڈڈیال۔ اندرحل ویلفیئر ٹرسٹ کی تنظیم کے انتخابات عزیز میرج ہال ڈڈیال میں مورخہ 8 نومبر 2024 میں منعقد ہوئے، جس میں آئندہ 3 سالوں کی تنظیم سازی کی گئی، جس کی صدارت ضلعی سوشل ویلفیئر آفیسر میرپور ملک نثار نے کی۔ تنظیم کی صدارت کے لیے عدنان فاضل ایڈوکیٹ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ باقی عہدیداران کے نام درج ذیل ہیں: عدنان فاضل ایڈوکیٹ صدر، محمد امین نائب صدر، رخسانہ کوثر نائب صدر دوئم، راجہ شوکت علی جنرل سیکرٹری، تبسم فاطمہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری، حمزہ خان فائنانس سیکرٹری، سعد شفیق الرحمان پریس سیکرٹری۔ اجلاس میں عہدیداران نے اپنی حیرت کا اظہار اور تنظیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے عزم کا ارادہ کیا۔ اجلاس میں تنظیم کے بانی اور سابقہ چیئرمین چودھری انور حسین نے خصوصی شرکت کی اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بھرپور مدد اور تعاون کا یقین دلایا۔ اوکارا سے خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کی اڈا نوول پلاٹ میں ڈیلر کے خلاف کارروائی۔ متذکرہ ڈیلر کسان کارڈ ٹرانزیکشن کے باوجود کسان سے ڈی اے پی میں اوور چارجنگ میں ملوث پایا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے ڈیلر کا اکاؤنٹ ڈیجیٹل کھاتہ منقطع کر دیا، دکان کو سیل کرتے ہوئے ڈیلر کو گرفتار کر لیا اور متعلقہ تھانے میں مقدمے کے اندراج کے لیے استغاثہ جمع کروا دیا گیا۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاہ رخ کی رپورٹ کے مطابق تاندریا والا تھانہ گڑھ کی حدود میں مبینہ ڈکیتی کی واردات، 10 روز گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ متاثرہ خاندان کی آئی جی پنجاب سے مداخلت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق تاندریا والا کے چک نمبر 621 گاف بے میں مقامی زمیندار اللہ یار پروکا کے مطابق 10 روز قبل درمیانی شب 9 کو نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر لوٹ لیا، جس کی اطلاع موقع پر مقامی پولیس کو دی گئی، جس نے موقع پر پہنچ کر
موقع کی کارروائی کی اور مقامی تھانے میں درخواست بھی دی، لیکن مقدمہ درج نہ ہو سکا، جس پر کی سال نے ڈی ایس پی، ایس پی اور سی پی او کو بھی متعدد درخواستیں دی، لیکن مقدمہ پھر تاحال درج نہ ہو سکا۔ متاثرہ شخص نے درخواستوں میں موقف اختیار کیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی ذاتی زرعی زمین میں بنائی گئی حویلی میں سویا ہوا تھا کہ رات کے 12 بجے 9 کو نامعلوم ڈاکو دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور اسلحہ کے زور پر یرغمال بنایا ہے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے انہیں بما اہل و عیال بے دردی سے مارنا شروع کر دیا اور ایک کمرے میں بند کر کے گھر میں موجود طلائی زیورات اور نقدی 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئی، جنہیں وہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے۔ اس واقعے کی پولیس کو اطلاع اور درخواست بھی دی گئی اور مضروب افراد کے میڈیکل بھی کروا کے جمع کروائی گئی، لیکن پولیس سی پی او کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تاحال مقدمہ درج کرنے سے قاصر ہے۔ متاثرہ شخص اور اہل دہا کا کہنا ہے کہ پولیس کا کام عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرنا۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب عثمان انور سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور ہمارا مقدمہ درج کرتے ہوئے اس جرم میں ملوث کرداروں کو قرار کی سزا دلائی جائے اور ہمارا نقصان پورا کروایا جائے۔ متاثرہ شخص نے میڈیا نمائندگان کے ذریعے اعلیٰ حکام کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر اسے انصاف نہ دیا گیا تو وہ ایس پی تاندہ والا کے دفتر کے سامنے خود پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا لے گا اور اس کی جان کی ذمہ داری بھی پولیس اور ریاست پاکستان پر ہوگی۔ یہ ساڈی بانجی دے گھر 'چ واردات ہوئی ہے جن 'چ 2 عورتاں تے 3 بندے شدید مضروب ہوئے نے، جنہاں دے ڈاکٹ بھی ہیں درخواستاں دے نال، تے درخواستاں صرف اجے تک ردی دی ٹوکری رہ گئی ہیں۔ ایس ایچ او گڑھ، ڈی ایس پی صاحب تاندلیاں والا، سی پی او صاحب کھلی کچہری، آر پی او صاحب فیصل آباد نوں گزارش کیتی تے اجے تک ساڈا نامعلوم پرچہ نہیں ہویا تے نہ ہی موقع دے اوتے کوئی ناکہ بندی کرائی گئی۔ اگر ناکہ بندی ہو جاندی تے وٹو چوک نوں جویں ڈکیٹ نسے سی انہاں رنگے ہتھوں پکڑیا جانا ہا، کوئی ناکہ بندی نہ کروائی گئی موقع تے نہ ہی اج تک نامعلوم مقدمہ درج کیتا گیا تے اپنا شیرازی چوک تے فاروق چوک مکمل طور تے ڈاکو راج ہے۔ آئے روز درخت سٹ کے روڈ بلاک کیتا جاندہ ہے، مزاحمت وچ لوگ زخمی نے، نہ ہی کوئی مقدمہ درج تے نہ ہی کوئی ڈاکوؤں دی کارروائی کیتی جاندی۔ بکر شہر اور گردنواہ میں شدید اسموگ کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی اور معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایم روڈ پر چھپڑی ہوٹل کے قریب اسموگ کی وجہ سے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 9 افراد زخمی، ڈی ایچ کیو بکر شفٹ ریسکیو۔ بکر شہر اور گردنواہ میں شدید اسموگ کی وجہ سے حد نظر انتہائی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی اور معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایم روڈ پر چھپڑی ہوٹل کے قریب اسموگ کی وجہ سے ملتان سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 9 مسافر زخمی ہوئے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر عبید اللہ نے کہا ہے کہ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال بکر میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈی پی او بکر شہزاد رفیق اوان نے کہا ہے کہ اسموگ کے دوران شہری احتیاط کریں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سٹی بیورو چیف شیخ بابر قریشی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف گھیرا تنگ، ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ سرگنا سمیت گرفتار، مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایات پر ضلع سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور رازدانی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر ڈی ایس پی سٹی سرکل کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ انسپکٹر نعمان احمد بٹر نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی گینگ کے سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان اسلحہ کے زور پر شہروں سے نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھینتے اور فرار ہو جاتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان سے 10 مقدمات ٹریس ہوئے اور ان کے قبضہ سے مال مسروقہ میں نقدی 2 لاکھ روپے، 5 قیمتی موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ، ناجائز 2 عدد پسٹل، 30 بور بما متعدد گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتار گینگ کے ملزمان کے نام حمزہ ولد قاسم سکنہ خادم علی روڈ سیالکوٹ، سفیان ولد ناصر سکنہ کیپیٹل روڈ سیالکوٹ۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے، جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی او سیالکوٹ رانا عمر فاروق نے پولیس ٹیم میں شامل تمام افسران ملازمین کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق معروف سماجی شخصیت الیاس بھٹی نے اپنے دوست اشتیاق بھٹی کو فرانس سے واپسی پر بہترین عشائیہ مدعو کیا، جس میں عباس بھٹی، وقاص بھٹی، کامران شہزاد بھٹی، فیصل بھٹی سمیت دیگر دوست احباب نے شرکت کی، جس پر الیاس بھٹی کا کہنا تھا کہ انسانی رشتوں میں خون کے رشتوں کے علاوہ بلکہ بعض اوقات خونی رشتوں سے بھی زیادہ جس رشتے نے بڑا مقام پایا ہے وہ ہے دوستی۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارا بھائی
हमारा बाजू होता है, लेकिन हमारा दोस्त हमारा दिल होता है, जिसको अपने सारे राज बताते हैं और जिससे हम अपनी हर खुशी और गम बांटते हैं, जिसको हम हर सुख दुख का साथी बनाते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां मोड़ और ANF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी। पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां मोड़ और ANF ने कार्रवाई करते हुए मुखबर खास की इतला पर मुसाफिर रिक्शे में लाखों रुपए मालियत मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी। मुसाफिर रिक्शे पर सवाल कमसिन मुलजम सलमान गुल खान सप्लाई के लिए गुजरांवाला से डस्का की जानब आ रहा था। ANF टीम और पेट्रोलिंग टीम गलोटियां ने मुखबर की इतला पर रिक्शे को गलोटियां के करीब रोका तो 2400 ग्राम मंशियात कमसिन मुलजम से बरामद हुई। मुलजम सलमान गुल खान मुख्तलिफ गाड़ियां बदल कर पेशावर से डस्का सप्लाई के लिए आ रहा था। पेशावर से आते हुए रास्ते में भी 1 दर्जन से ज़ायद सप्लाई दी। मुलजम सलमान ने बताया कि मशरफ खान की सप्लाई देता हूं, जिसे अब तक मतअद्दिद बार डस्का पहुंचा चुका हूं। ANF का कहना है कि मंशियात फरोश गैंग का पंजाब भर में बड़े पैमाने पर मंशियात सप्लाई करने का इंकशाफ हुआ है। मंशियात फरोश मशरफ खान गैंग को जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। हैरपुर नाथन शाह अजीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद। बापटा हाइड्रो यूनियन सब डिवीजन हैरपुर नाथन शाह के चेयरमैन इलाही बख्श चांडियो और मोहम्मद कासम चांडियो की जानिब से यूनियन के मरकजी रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया। बाईपास से कन्वेंशन हॉल तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी और दिगर मरकजी कायदीन का तरही इस्तकबाल किया गया। मरकजी कायदीन का इस्तकबाल पर बैंड बाजे बजाकर किया गया। रहनुमाओं ने वापटा हाइड्रो लेबर यूनियन सब डिवीजन हैरपुर नाथन शाह के चेयरमैन इलाही बख्श चांडियो और साबिक चेयरमैन मोहम्मद कासम चांडियो को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और पुरतपाक इस्तकबाल पर इनका शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं ने कहा कि हम मुलाजमीन के हुकूक के लिए दिन रात जदोजहद कर रहे हैं, जो जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने IPPs को शामिल करके मुल्क में बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया है, जिसका बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क में वापटा की जानिब से नई मुकर्रियां नहीं की जा रही, जिसकी वजह से 5 अफराद का काम एक मुलाजम कर रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात में लोग लुकमाए अजल बन जाते हैं। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी और गिरदनवाह में स्मोक और धुंध का राज। गोटकी शहर और गिरदनवाह में शदीद धुंध के साथ साथ स्मोक का राज। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, खद्दे निगाह सिफर होकर रह गई। गोटकी और गिरदनवाह के शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहरी दौरान सफ़र सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। स्मोक के बायस शहरी अशूब, चश्म, दमा, सांस एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। NN उमरा ग्रुप ऑफ कंपनी के नए दफ्तर के शानदार इफ्तिताह के मौका पर जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। हम इस कारोबार को इबादत समझकर अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत करते हैं। साहबजादा पीर मोहम्मद उस्मान अजीज़ कादरी लाला मूसा ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडार की तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में सफ़े अव्वल की उमरा कंपनी NN उमरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मरकजी दफ्तर का शानदार इफ्तिताह डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान अजीज़ कादरी NN ट्रैवल एंड टूर्स और मरूफ कारोबारी शख्सियत बानी NN उमरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हाफिज़ मोहम्मद इकबाल नूरी की सरपरस्ती में आज 10 नवंबर बरोज़ एतवार को हो रहा है। इस मौका पर रूहानी महफिल जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुबल्लिग यूरोप अलामा अंसर कादरी खतीब आज़म बरतानिया का खुसूसी खिताब होगा, जबकि खुसूसी नात शरीफ पीर सैयद जरार हुसैन शाह अल काज़मी नक्शबंदी दरबार आलिया चंडावाला शरीफ शहजाद सैफुल मलूक कदीर हुसैन बाट पेश करेंगे। इस खूबसूरत रूहानी तकरीब में हाज़रीन महफिल के लिए 5 अदद उम्रा के टिकट बजरिया कुरानदाजी बतौर तोहफ़ा रखे गए हैं। इस शानदार इफ्तिताह के मौका पर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान नूरानी चेयरमैन NN ट्रैवल एंड टूर्स, हाफिज़ मोहम्मद यकूब दाता नूराली चीफ एग्जीक्यूटिव NN ट्रैवल्स एंड टूर्स, सरदार फैज़ान मलक NN ट्रैवल एंड टूर जंड, आसम रियाज NN ट्रैवल्स एंड टूर खारियां, मोहम्मद नदीम कुरैशी टंडवादम और NN उमरा ग्रुप के तमाम पार्टनर के अलावा मुल्क भर से मुख्तलिफ मजहबी सियासी समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम बाद अज़ा नमाज इशा GT रोड खाड़ियाँ में NN उमरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मरकजी ऑफिस में होगा। इस प्रोग्राम की सिक्योरिटी के इंतजाम साहबजादा खालिद महमूद चिश्ती की सरबराही में इनकी टीम अदा करेगी। मरूफ कारोबारी शख्सियत और NN ट्रैवल्स एंड टूर्स के डायरेक्टर साहबजादा पीर मोहम्मद उस्मान अजीज़ कादरी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कारोबार को इबादत समझकर अल्लाह के घर के मेहमान की खिदमत करके खुशी महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को इत्तला दी जाती है
जश्न गौसल बरा 10 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा नज़द उस्मानिया रेस्टोरेंट एंड नुमरा ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसमें 5 उम्रा टिकट बजरिया कुरंदाजी खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब खतीब आज़म यूके जामिया कादरिया एसरम रातो गढ़ी अहमदाबाद। औरतों के लिए पर्दे का अलग इंतज़ाम है। सब दोस्त अहबाब वुज़ू करके तशरीफ़ लाएँ। आपकी आमद का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हारूनाबाद से अबर शामिल करते हैं। मुल्क का वला और इस्लाम से वाबस्ता है, कोई इदारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पाकिस्तान को जोड़ सकता है। तहरीक इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसकी तकमील इसे मकसद से हम आहंग करने में है जब तक अशरफिया वसाइल पर काबिज है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी जनरल कौंसिल के रुकन साबिक सूबाई टिकट होल्डर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि अंग्रेज़ चले गए, अपना निज़ाम और इसके मुहाफिज छोड़ गए। इस फरसूदा निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है और ये मकसद सिर्फ मुनज़्ज़म जदोजहद से हासिल होगा। ताले आज़माओं और ख़ास अशरफिया ने आइन को तबाह किया है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि आइन पाकिस्तान की खास बात यह है, ये पूरी कौम का मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें वाज़िया किया गया है कि मुल्क में अल्लाह की हकमियत होगी और कुरान और सुन्नत की तरवीज की जाएगी। आइन बन गया और ये होना भी चाहिए था, इसको इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाता, मगर अभी तक ऐसा ना हो सका। आइन में इंसानी हकूक़, सूद की ममानत, एहतियारात का तयन और जमहूरी आज़ादियों का जिक्र है, लेकिन हाल ये है कि स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी है। बल्दियाती निज़ाम को मुनज़्ज़म नहीं किया गया, इदारे तबाह कर दिए गए। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब गवर्नमेंट टेक्निकल मॉडल हाई स्कूल में अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर इनको खराजी अकीदत पेश करने के लिए सेमिनार मुनक़्क़द हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बास सियाल थे। तकरीब में उसातिज़ा और तलबा तालबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और अल्लामा इकबाल से अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत दिया। ADCR ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर इकबाल ना होते तो बरसगीर के मुसलमानों के पास वो एटमी ताकत ना होती जो पाकिस्तान की सूरत में ज़ाहिर हुई। उन्होंने कहा कि तमाम आलम इस्लाम पर इकबाल के कलाम के गहरे असरात पर हम अहले पाकिस्तान बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद खिताब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करके आज की नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी में बदल सकते हैं और इसमें बिलखसूस तालबात को अल्लामा इकबाल की तालीमात पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। उन्होंने उसातिज़ा और तालबात की काविशों को सराहा। तालबात ने तकरीब में वालहाना अंगेज़ तकारीर की और कलाम इकबाल को तरन्नुम के साथ पढ़कर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश किया। जूनियर सेक्शन की तालबात ने टैबलोस पेश किए। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक अल सुल्तान मेमोरियल हाई स्कूल रसूलपुर की पूरी मैनेजमेंट, उसातिज़ा और तमाम अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करते हैं। खसूसी मुबारकबाद डायरेक्टर प्रिंसिपल अमजद यासीन साहब। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो ही बहुत अच्छा कारसाज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल सुल्तान मेमोरियल हाई स्कूल रसूलपुर के नाम एजाज़ात आपका अपना इदारा जहाँ बेहतरीन माहौल और काबिल तरीन उसातिज़ा के साथ निसाबी सरगर्मियों में पेश है, तो वहाँ अल सुल्तान स्कूल आपके बच्चों को बना रहा है गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बेहतरीन। मशहूर मुहावरा है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद हों वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। इसकी यही वजह है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम हालिया जारी मुकाबला जार डिवीजन साहिवाल स्पोर्ट में हिस्सा मिडल 100 मीटर रोड के मुकाबलों में जमात हश्तम के होनहार तालब इल्म इरफान मुमताज़ फल्त सरदार मुमताज़ अहमद थीम ने डिवीज़न भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और इसी तरह आपका अपना इदारा जहां निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में पेश है, वहां पर दीनी तरबियत में भी किसी से कम नहीं है। अदबी मुकाबला जात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नन्ना सा होनहार जमात पंचम का तालब इल्म मोहम्मद अरसलान जाफ़र वालिद मोहम्मद जाफ़र ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरात के मुकाबलों में डिवीज़न भर में प्राइमरी हिस्सा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तमाम पोजीशन होल्डर्स बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह टीम के बगैर कुछ भी नहीं, तो अल सुल्तान मेमोरियल हाई स्कूल के तमाम मौजूद उस्ताद कराम को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिनकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ। आरफवाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अहमद यार के इलाके फरीद शाह में जिंदा सिफ्त बाप की बेटी के साथ जिनसी दरिंदगी। शुबान नामी मुलज़म ने अपनी 18 साल बेटी को ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला और फ़रार हो गया। मुलज़म शुबान अपनी फैमिली के हमरा मुकामी जिम्मेदार के ट्यूबवेल पर हाइश पजीर था। DPO पाकपतन तारिक विलायत के नोटिस पर अहमद यार पुलिस ने फ़रार होने वाले मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। अहमद यार पुलिस ने जनाबिल जबर की दफ़ात के तहत दरिंदा सिफ्त बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासर लड़की के मुताबिक इसका बाप गुज़िश्ता 2 साल से इसे ज़्यादती का निशाना बना रहा था। गिरफ्तार मुलज़मान ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है,
जिस से मजीद तफ्तीश की जा रही है। DPO तारक वलायत बाप बेटी जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल करने वाले मुलजम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। DPO तारक वलायत। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमलो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी, मीरपुर मथैलो शहर और गिरदनवाह में शदीद धुंध के साथ साथ स्मोक का राज। शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हद निगाह सिफर होकर रह गई। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। डहरकी शहर दौरान सफर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। डहरकी स्मोक के बाद शहरी अशूबे चश्म, दमा, सांस एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरी मास्क और इनका इस्तेमाल करें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों में स्मोक का राज। स्मोक की शिद्दत में आए रोज इजाफा होने लगा, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों में स्मोक ने डेरे डाल दिए, जिसमें आए रोज इजाफा होने लगा। स्मोक की वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसमें सांस, गले, फेफड़ों और आंखों की बीमारियां सर फहरिस्त हैं। जबकि तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हदायत की हैं। शहरी अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने वज़ीर पंजाब, सूबाई वज़ीर माहौलियात, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर, दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि स्मोक का सबब बनने वाले भुट्टों, चिंगची रक्षों, फटा रक्षों, फैक्ट्रियों और दीगर बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि स्मोक पर कंट्रोल पाया जा सके और शहरी मुजी अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर दहोतर ने स्मोक का सबब बनने वाले नासर के खिलाफ शहर और गिरदनवाह में भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु के हुक्म पर भुट्टों को मस्मार करने का भी आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर दहोतर, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान जफर दहोतर की क़यादत में स्मोक का सबब बनने वाले 3 अदद भुट्टे, जिनमें एक सिकंदराबाद और 2 मुल्तान रोड पर मस्मार कर दिए गए, जबकि 3 भुट्टा मालकान पर FIR और 2 भुट्टा मालकान को मौके पर गिरफ्तार करा लिया गया। जबकि फसलों की बाकियात चलाने वालों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर दहोतर ने 4 अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की और इनके खिलाफ मुतल्लिका थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इस मौका पर शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर दहोतर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले नासर के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आलूदगी का सबब बनने वाले नासर के खिलाफ ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। कोटला अरब अली खान से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक कोटला और गिरदनवाह की आवाम के लिए खुशखबरी, ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कोटला में कर दिया गया है। अब आपको गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं। कोटला पेट्रोलिंग चेक पोस्ट में DSP मोहम्मद इलियास बेग ने इंस्पेक्शन की। DSP को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस मौका पर बिल्डिंग, असला, बागीचा, पुलिस मोबाइल और रिकॉर्ड चेक किया गया। DSP ने चौकी इंचार्ज चौधरी इरफान, सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर DSP का कहना था कि IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस का मकसद रोड क्राइम के खात्मे को यकीनी बनाना है और दौरान सफ़र कोई हादसा या कोई मसला पेश आने पर पेट्रोलिंग पुलिस की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। कोटला पेट्रोलिंग चेक पोस्ट से शहरी बासानी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकेंगे। शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। कोटला पेट्रोलिंग चेक पोस्ट में इजरा कर दिया गया है। इस मौका पर हसन महमूद खान, हसन पठान अमरीका, राजा मोहम्मद अनीस एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात, राजा सफदर संगला, चौधरी बावा अकमल चड़ियावला, चौधरी तारक महर, चौधरी मोहम्मद फयाज अंजुम ककराली, सदर तहसील प्रेस क्लब खारियाँ, चौधरी बिशारत हुसैन ककराली, मिर्ज़ा बिशारत हुसैन ककराली, चौधरी जफ़र इकबाल झंडियाला, चौधरी अरशद बंगियाल, दानिश खान हसन, राजा उमर चड़ियावला, राजा शहजाद खान कोटला प्रेस क्लब पठान, इमरान खान, चौधरी जफ़र इकबाल रोलिया, MS बाजवा, आबद मिर्ज़ा, आमर नदीम भट्ट समेत दीगर मुमताज़ शख्सियात मौजूद थी। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से खबर शामिल करते हैं सेवन पुलिस की जराइम पेशा मनशियात फरोशों मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। एक औरत मुलजमा मनशियात समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP जमशोरो जफर सदीक छांगा के अहकामात की रोशनी में सेवन शरीफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। DSP सेवन अहमद बख्श राजू की सुपरविजन में SHO सेवन सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज खोसो की सरबराही में सेवन पुलिस की मुख्फी इत्ता पर कार्रवाई करते हुए छापा मारकर औरत मनशियात फरोश मुलजमा खालदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से मुजरे सेहत मंशियात 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजमा के खिलाफ थाना सेवन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मदरजा झैल है। मुलजमा से मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अबर शामिल करते हैं एसएसपी जमशोरों की हदायत पर जमशोरों पुलिस की जानब से अमन की फ़ज़ा कायम रखने के लिए हवाले से ज़िला भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का इनेकाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धारजियों के अहकामात की रोशनी में एसएसपी जमशोरों ज़फ़र सदीक छांगा की हदायत पर डीएसपी साहिबान की ज़ेर निगरानी में ज़िला जमशोरों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान होटलों, रेस्ट हाउसेज और मुतअद्दिद गाड़ियों को सर्च किया गया। इसके अलावा मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम CIR और तलाश सॉफ्टवेयर के तहत तस्दीक की जा रही है। एसएसपी जमशोरों ने कहा कि ज़िला जमशोरों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम DSP साहबान की सरबराही में ज़िला भर में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन और जनरल होल्ड अप नाकाबंदी का इनेकाद किया गया है। SSP जमशोरों ज़फ़र सदीक छांगा ने मज़ीद कहा है कि ज़िला में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने और ज़िला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए और आवाम की जान व माल को हफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम लिए जाएंगे और जराइम पेशा अनासर और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। खानपुर हादसा। खानपुर काजीवाला मोड़ के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के बाद 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में 25 साला आबिद, 55 साला दीन मोहम्मद शामिल। हादसा धुंध की वजह से पेश आया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खानपुर शहर और गिरदनवाह में शदीद स्मोक का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी। लाहौर और मुल्तान के बाद ज़िला रहीम यार खान, मुल्हिका ज़िला राजनपुर, रुझान भी फ़ज़ाई आलूदगी पहले नंबर पर मौजूद। रहीम यार खान के इलाके खानपुर, लियाकतपुर, सादिकाबाद, ज़हर पीर में भी स्मोक के डेरे। स्मोक के बाद हद निगाह सिफर रह गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी आँख, नाक, कान, गला समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी घर से बाहर निकलने वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे M5 शबीर शाह मुल्तान से ज़हर पीर तक धुंध और स्मोक की वजह से बंद। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें। रोड यूज़र आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर स्पोर्ट एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर आसम भट्ट का सैयद हसन शाह, सैयद वाजिद शाह और शेख असद एहसान के हमरा सियालकोट का दौरा। सियालकोट मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर आसम भट्ट ने सैयद हसन शाह काज़मी, रईस ऑफ सोहावा, सैयद वाजिद अली शाह, शेख असद एहसान के साथ सियालकोट का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अपने हलका के गांव बडाल चन्नों के साथियों के साथ चौधरी आदल गोंदला बडाल की रहाइशगाह पर मुलाकात की और अपने हलका के लोगों के मसाइल सुने, इनके हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर मिनिस्टर स्पोर्ट एंड यूथ कल्चर आसम भट्ट का कहना था कि मैं दिन रात अपने हलका के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोशा हूँ और हर वक्त अपने हलका के लोगों के शाना बशाना खड़ा हूँ। रावल मार्केट कोटला ककराली भिम्बर रोड ज़िला गुजरात में 21 सालाना महफिल शान मुस्तफ़ा काज़िमुल शाह इनेकाद। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन बंडाहर की तफसीलात के मुताबिक तमाम आशिकान रसूल को 12 नवंबर को रावल मार्केट कोटला ककराली भिम्बर रोड ज़िला गुजरात में मुनक़्क़द होने वाली 21 साला महफिल मुस्तफ़ा में शिरकत की दावत दी जाती है। ये महफिल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई जाती है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम और नातख़्वां हज़रात शिरकत करेंगे और अपने कलाम से ईमान अफरोज़ पैगाम पहुँचाएँगे। ज़ेर सदारत इस महफिल की क़यादत में पीर सैयद नकीबुर रहमान आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी फरमाएंगे। खसूसी खिताब साहबजादा वलशान मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान कादरी करेंगे, जो अपनी रूहानी बसीरत से सामाइन के दिलों को मुनव्वर करेंगे। ज़ीनतुल फ़ुक़रा सुहेल अहमद साहब कादरी डेरा गाजी खान और मोहम्मद शकील कादरी अपने मुनफरिद अंदाज से नात पेश करेंगे। ये महफिल एक बाबरकत मौका है जहाँ पर आने वाले मेहमान खसूसी मेहमान होगा और महफिल के दौरान ईमान अफरोज़ कलाम पेश किए जाएंगे। तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस रूहानी महफिल में शिरकत करके बरक़ात से मुस्तफ़ीद हों। मकाम रावल मार्केट कोटला ककराली भिम्बर रोड ज़िला गुजरात। शेख अली रज़ा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा हादसा लाहौर रोड किला स्तारशाह के करीब पेश आया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी। कॉलर के मुताबिक धुंध की वजह से ट्रालर ने अचानक ब्रेक लगाई और पीछे से आती हुई फैक्ट्री बस टकरा गई। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने ज़ख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक 45 साला शख्स की शिनाख्त ना हो सकी, जबकि जख्मी अफराद में इशफाक 35 साल, अली रज़ा 29 साल और मुजाहिद 48 साल शामिल हैं।
आरफ वाला चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरफ वाला पंजाब के दीगर शहरों की तरह स्मोक ने तहसील आरफ वाला को भी अपनी लपेट में ले लिया। ट्रैफिक भी शदीद मुतासर। गुज़िश्ता 2 रोज़ से आज इतवार के रोज़ भी फ़िज़ा में स्मोक बरकरार। स्मोक के बाइस बीमारियों में इजाफा। बच्चों और बड़ों समेत हर उम्र के अफराद को एहतियात बरतने की ज़रूरत। तबी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। शामिल करते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा धमाका। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद कोयटा से पेशावर के लिए चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए चलने वाली बुलान मेल को 4 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला किया गया। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल को 11 नवंबर से 4 रोज़ के लिए बंद किया जाएगा। फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को पेश नज़र रख के किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद जाँ बाग और 62 जख्मी हो गए थे। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बच्चे पेशावर के लिए रवाना होना थे। ट्रेन के प्लेटफार्म पर लगने से पहले धमाका हुआ था। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जोनल एसपीज का खुली कचहरियों का इनेकाद। खुली कचहरियों में शुरा ने अपने मसाइल बयान किए। जोनल एसपीज की पुलिस अफसरान को शहरियों के मसाइल को फौरी हल करने की हदायत। शहरियों के जानो माल की हिफाजत और मसाइल का हल इस्लामाबाद पुलिस की तरजीहात में शामिल है। तफसीलात के मुताबिक जोनल एसपीज ने अपने इलाके के मसाजिद में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिसमें SDPOs SHO समेत इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुली कचहरियों में मौजूद शुरा ने अपने मसाइल बयान किए और बेहतरी के लिए तजावीज़ात पेश की। हल तरफ मसाइल पर जोनल SOPs ने मौके पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और शुरा की पेश करदा तजावीज़ात पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने खुली कचहरी के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के अहकामात की रोशनी में अवामी शिकायत और इलाकाई मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। IG इस्लामाबाद के वाज़ेह अहकामात हैं कि तमाम अफसरान अपने हलकों में खुली कचहरियों का इनेकाद करें ताकि शहरियों के साथ बराह रास्त रब्ता रखा जा सके और इनको दरपेश मुश्किलात हल करने में मदद मिले। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस दिन रात आपकी हिफाजत और खिदमत में कोशियाँ हैं। जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है इनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली की वजह से इलाका में जराइम में हातर हुआ कमी हुई है, ताहम इसमें मजीद बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि कब्जा माफिया जराइम का कलाकमा और मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुलिस को अवाम के ताउन की जरूरत होती है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल की DMS डॉक्टर निमरा खान ने अस्पताल का विजिट किया। सियालकोट गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल की DMS डॉक्टर निमरा खान ने इतवार के रोज़ हॉस्पिटल का विजिट किया और हॉस्पिटल की तमाम वार्ड्स चेक की। SHOs डॉक्टर PG डॉक्टर से मुलाकात की और हॉस्पिटल की सफाई सुथराई चेक की। डॉक्टर निमरा खान ने हॉस्पिटल की एक वार्ड का विजिट किया और हर वार्ड के स्टाफ से वहाँ पर मौजूद मेडिसिन के हवाले से मालूमात ली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई मेडिसिन की कमी हो तो वो मुझे बताएं, आपको मेडिसिन मिल जाएगी। और हॉस्पिटल इमरजेंसी मेडिकल स्टोर का विजिट किया, वहाँ पर भी मेडिसिन चेक की। हॉस्पिटल की पर्ची काउंटर का विजिट किया और डॉक्टर निमरा खान का कहना था कि मेरी ड्यूटी के दौरान हॉस्पिटल में किसी मरीज़ को किसी किस्म की कोई चीज़ की भी कमी नहीं आनी चाहिए। और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी इदारों से मुलाकात की, जिसमें पाक वतन और MTI भी मौजूद थे। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इदारों को डॉक्टर निमरा खान ने हिदायत की कि हर आने वाले मरीज़ से पूरा तावन करें। कोट अद्दू थल जीप रैली में उड़ती हुई धूल और रंगारंग तकरीबात। आज फाइनल राउंड में जौहर दिखाने के लिए तैयार, कौन बनेगा सुल्तान। थल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी। थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी का ट्रैक कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। रैली 3 घंटे ताखीर से शुरू होने के बाद ट्रैक 195 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर किया गया। इस मौके पर थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 3 घंटे ताखीर से शुरू हुए थे। इस्लामाबाद से मलिकदीप की रिपोर्ट के मुताबिक खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने में मुलव्विस मुलज़िम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सर्कल मल्टी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन जिन्स की हिरासगी में मुलव्विस मुलज़म गिरफ्तार। मुलज़म माजिद हुसैन को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया। मुलज़म ने मुतासरा की काबिल एतराज़ व्हाट्सएप पर तस्वीर शेयर की। मुलज़म फिश फार्म में बतौर हेल्पर काम कर रहा था। मुलज़म ने मुतासरा खातून को जिनसी तौर पर हादसा किया। मुलज़म मुतासरा खातून को गुज़िश्ता कई माह से ब्लैकमेल भी कर रहा था। छापामार कार्रवाई में मुलज़म के कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलज़म के मोबाइल फ़ोन से मुतासरा का काबिल एतराज़ मवाद और पैगामात भी बरामद कर लिए गए। मुलज़म को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है।
اسلام آباد سے مرکزین کی رپورٹ کے مطابق آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث منظم گینگ کے خلاف گیرا تنگ FIA سائبر کرائم سرکل کی بڑی کارروائیاں آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث 3 منظم گروہوں کے خلاف آپریشن سپوفنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث 3 منظم گروہ کے 8 ملزمان گرفتار ملزمان کو چھاپہ مار کارروائی میں ہانیوال جنگ اور ملتان کے متی علاقوں سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان میں عمران عرفان علی شفقت علی محمد غازی محمد شاہد محمد سمیر محمد شہزاد محمد دانش شامل ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ملزمان سوفوپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ لوگ شہریوں کو کالرز کرتے تھے ملزمان خود کو بینک نمائندہ پولیس انسپکٹر اور ویزا ایجنٹ ظاہر کر کے شہریوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے ملزمان متاثرین کو کال پر رکشہ دار کی جعلی گرفتاری کی اطلاع دیتے اور ان کی رہائی کے لیے رقم وصول کرتے ملزمان انٹرنیشنل نمبرز کا بھی استعمال کرتے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں رائے بنڈ سے نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق رائے بنڈ کے نواحی گاؤں بچی گئی کا بزرگ دیہاتی دادرسی کے لیے تھانہ سٹی رائے بنڈ پہنچ گیا رائے بنڈ کے نواحی گاؤں بچی گئی میں سیاسی اشربات پر بااثر افراد کی جانب سے خواتین کو ڈھال بنا کر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے عمر دراز نامی دیہاتی بزرگ قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ سٹی رائے بنڈ پہنچ گیا بچی گئی کے رہائشی بزرگ نے ملکیتی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست تھانہ سٹی رائے بنڈ میں جمع کروا دی درخواست میں بزرگ دیہاتی سائل نے موقف اختیار کیا ہے کہ 18 سال سے پہلے جگہ خرید کر باقاعدہ اسٹامپ کروایا تھا اور 18 سال سے پلاٹ زیر استعمال ہے چند بااثر افراد سیاسی اشربات سے خواتین کو ڈھال بنا کر جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سمیت میرے بچوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا کے سیاسی انتقام لینا چاہتے ہیں افسران بالا سے گزارش ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔